એ લોકોનો આખો સમાજ પીરાના પંથમાં જતો રહ્યો. એમનું કર્ણાવતીમાં એમનું મુખ્ય સ્થાન છે. મેં તો એવું સાંભળ્યું છે, સાચું ખોટું મેં જોયું નથી, કે ભાઈ ઓલી લોટની ગાય બનાવીને એનું બલિદાન આપે કાપે. હવે ક્યાં એ પરંપરા ઈરાનની? એ વ્યક્તિ આવ્યો હતો ને એને વરસાદનું કહી દીધું. એમ તો ઘણા ગુંડા કહે છે એ થઈ જાય છે, તો ગુંડાને ભગવાન બનાવી દેવાનું કઈ? હવે ઘણી વખત શું છે, પટેલમાં દીકરી દીધેલી, ઓલા પીરાના ને માનતા, આ સત્ય સનાતન, આ સતપથ કહે છે ને, આ સતપથ વાળા નામ પાછું સતપથ આપે. આપણને એમ થાય કે આ તો જુઓ લક્ષ્મી નારાયણના ઉપાસકો ક્યાં ભટકી રહ્યા છે. ભગવાન શિવના સંતાનો, માં ઉમિયાના બાળકો આજે ક્યાં દોરવાઈ ગયા છે, ખોટા માર્ગે ભટકી અને ક્યાં પોતાના જીવનને બરબાદ કરે છે. શું એમની પરંપરાને ખરાબ નથી કહેતા, પણ એ આપણા માટે યોગ્ય નથી. તમારા પિતાને બહુ પ્રેમ કરતા હો, તમારી મા સાથે તમારે બહુ સ્નેહ હોય. હવે તમારા માતા પિતાનું મરણ થઈ જાય તો તમે તમારા મમ્મી પપ્પાના શરીરને અડીને પછી નાવ કે ન નાવ? નાહીએ છે કે નહીં? અરે આપણો બાપ છે, એને અડીને નાવાની શું જરૂર હોય, એને સ્નાન કરવાની શું જરૂર હોય? પણ આપણે કહીએ કે નહીં, એ બાપનો જે આત્મા હતો ને જતો રહ્યો. આત્મા પવિત્ર હતો, શરીર પવિત્ર નથી. આને મળદું કહેવાય. અને આને અડી લઈએ ને, કોઈના પણ મળદાને અડીએ ને, તો આપણને સ્નાનનું સૂતક લાગવું પડે. સ્નાન તો તરત કરવું જ પડે. હવે આ બધા મરેલા હોતા હોય એની જે ઓલી બનેલી હોય, ત્યાં જઈને આપણે માથા અડાડીએ ને પાછા આવીએ ઘરે, કુળદેવી નારાજ થઈ જાય આપણે. એટલે જોવડાવવું હોય તો કોઈ સારા પવિત્ર બ્રાહ્મણ પાસે. અરે બ્રાહ્મણનો દીકરો અભણ હશે અને એ તમને જો સારી ભાવનાથી તમને ખાલી સલાહ આપશે ને, તો બ્રહ્મ વાક્યમ જનાર્દનમ, એ તમને એમ જ કહેશે મહાદેવના મંદિરે જઈ પંચામૃત ચડાવો, શેરડીનો રસ ચડાવો, આ કરો તે કરો. આ ઉપાયોથી આપણી સંસ્કૃતિનું ધર્મનું જ્ઞાન વધશે. સાંડિલ્ય ઋષિ આજ સુખિયા માલણને કીધું. સુખિયાએ પ્રશ્ન પણ બહુ સારો પૂછ્યો છે. એને એમ નથી કીધું કે મને રૂપિયા કેદી મળશે, મારો બંગલો કેદી બનશે. જ્યોતિષી પાસે જઈને કોઈ સામાન્ય પ્રશ્ન નથી. પ્રશ્ન એવો છે કે મને પ્રભુની પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે, કૃપા કરો અને મને એ કહો. અને સાંડિલ્ય ઋષિએ કીધું કે બેટ, તારા જીવનમાં એટલા બધા પાપ છે, એ પાપના કારણે તારા જીવનમાં તને કૃષ્ણના દર્શન નથી થતા. તો હું શું કરું? એ કે એક રસ્તો છે, તારા પાપને કાપવા માટે ભગવાનનું નામ સ્મરણ જ મોટું છે. એટલે તું પ્રભુના નામનું. હેલો हेलो. જય શ્રી રામ પ્રભુ. जय सिया राम. જી જી દાદા બોલો. जी. मैंने वीडियो सुनी अभी आपकी, જી महाराज जी. मांडवी से आप बोल रहे थे. जी जी, आपका शुभ नाम प्रभु? जनार्दन महाराज, फैजपुर, महाराष्ट्र. जी महाराज जी. जी अभी मेरी कई फोन आए मुझे, उनसे बात हुई, उनसे स्पष्टता भी हो गई उनसे. जी. और मुझे खेद है कि कई लोगों को इनकी वजह से दुख हुआ है. हाँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं किसी को आहत करूं. मैं समझ और रहा हूँ कि आपने कहीं बताई हुई या पढ़ी हुई बात उसमें कही है, और आप बोले भी हो जी कि मैंने देखा नहीं है, सुना है. जी 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 हाँ. जी तो इससे क्या है ना कि थोड़ी परेशानी बढ़ी अंदर अंदर, जी क्योंकि अभी जो है ना, ये सारी बातें जो कुछ लोग हैं जो जी बदनामी करते हैं इन सारी चीजों की, और वास्तविकता कुछ अलग है. जी महाराज जी. मैंने उनसे अभी जो हमारे जो गुजरात के प्रमुख थे सतपंथ के, उनसे यही बात की कि मुझे आप कृपया धर्म ग्रंथ भेजिए. मैं उनका अभ्यास करके पुनः एक बार व्यासपीठ से जब मेरी कथा होगी तो उनसे विस्तृत उनका समाज के समक्ष उनका स्वरूप रख दूंगा कि ऐसे ऐसे है. और आगामी कथा में, गत कथा में जो बातें हुई थी उनसे ये भिन्न है. तो जी. मैंने वो ग्रंथ भी मांगा है और शायद मुझे मिल जाएगा 2 दिन में. हाँ, और इससे क्या होता है ना कि जो ये चाहते नहीं, हैं नहीं तो महाराज जी, देखिए उन्होंने पहली बात तो ये है, इ- मैं किसी कोई लक्ष्मी नारायण से जुड़ा नहीं हूँ. जी. और मेरे कोई यजमान भी नहीं है इतनी बड़ी संख्या में कि मैं किसी को खुश करने के लिए बताऊं. लेकिन इसमें ऐसी हुआ क्या, उन लोगों हाँ. ने आप के कंधे पे रख दी बंदूक. अच्छा. हाँ, मतलब ये आपका वीडियो का वो इशू ज्यादा बना रहे, और वो इससे ज्यादा फॉरवर्ड कर रहे आपके नाम से. अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है. मैंने कथा की थी, ये कथा मेरी अप्रैल में थी. हाँ.
अभी इनको कोई कथा नहीं हुए, अप्रैल यानी अभी इनको 5-6 महीने हो गए। वैशाख वैशाख में कथा थी मेरी शायद, जी 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 जी। वैशाख के शुक्ल कृष्ण पक्ष में कथा थी वो। हाँ हाँ तो हाँ। अभी की तो ये कथा नहीं है। तो हम्म। तो और अभी ये मुद्दा मुझे भी आज सुबह पता चला कि ऐसे हम्म। कोई वीडियो बना के जी। किसी ने भेजा है और और ये उतनी बात ही हुई है। बात वो किसी ने कट करके उसमें से वो। और महाराज जी विषय क्या था मैं आपको बताऊं। हम्म। हमारे कच्छ में ज्यादातर हिंदू लोग, यहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक हो रहे हैं यहाँ पे। जी जी और जी कई हमारे हिंदू गांव मुस्लिम बन गए। जी जी जैसे संघार समाज के 84-84 गांव थे, जी वो सब मुस्लिम हो गए। जी तो जी हम ये प्रयास में जुटे हुए कि उनकी घर वापसी कैसे हो। जी कई जी क्षत्रिय गांव के थे जो हमारे यहाँ 13 ज्ञातियां ऐसी थी जो हम्म। मुस्लिम हो गए जी ज्यादातर। जी और जी जी कच्छ अभी अल्पसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक होने जा रहे हैं कई जी जी जाने 10-20 साल में ऐसा हो जाएगा शायद, जी जी जो अभी चल रहा है इस हिसाब से। तो हमारी जो धर्म के लोग हैं, उनको जो समस्या रहती है तो वो समस्या का निराकरण करने के लिए वहां जाते हैं मस्जिद में, जी मौलाना जी। के पास। वो जो तो वो लोग तो आपने उनको। आपने महाराज जी उसमें स्पष्टता की है और मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। जी हाँ, जो आपने कही है कि सनातन जी धर्म में जैसे हनुमान जी है, गणेश दादा है, जी। तो ये हमारे लिए काफी है और सतपंथ संप्रदाय का यही मिशन है। हम्म। हाँ, उस बात का हम आपका नहीं, मुझे समर्थन करते प्रसन्नता हैं। हुई। जी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये जान के। मैं जी इतना परिचित नहीं था। जी जब जी। आज सुबह और दो मैं तीन मैं खुद महानुभावों से बात सतपंथ हुई तो पता। हाँ, जी मैं जी खुद सतपंथ संप्रदाय से हूँ। और जी अखिल भारतीय संत समिति जो है जी महाराज जी। उसमें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मैं हूँ। जी महाराज जी, तो बहुत बड़ी बात अखिल है। भारतीय मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरा संप्रदाय जो है विश्व हिंदू परिषद जी चंपत राय जी से लेके सभी जो है सभी जी प्रेरणापीठ से जुड़े हुए हैं। और आप उनके सबके दर्शन 19 अक्टूबर को कर सकते हैं पिराना में। जी। मुझे आमंत्रण भी मिला उनका। हाँ आमंत्रण भी मिला उनको। उन्होंने कहीं अहमदाबाद से कोई सज्जन का फोन था। जी जी बहुत जी मर्यादा से उन्होंने वार्तालाप किया उन्होंने, जी और जी हमने जी उनसे जाना और उनसे कहा है कि मुझे कोई उनका आपका धर्म ग्रंथ मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जी हम हमारा उद्देश्य यही है महाराज, जी। सनातन बिखर न जाए, बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। रूप में और सनातन की परंपरा आगे बढ़े। और हम चिंतित इस रूप से हैं कि हम्म। हमारे कई लोग उन लोगों से जुड़ रहे हैं। जी जी हमारा जी। चिंता का विषय ये है। और उनके बिल्कुल। कई। और एक बात मैंने जो बताई बकरा काटने वाली, वो जी जी। सनातन किराना से नहीं थी। मेरे नहीं पास नहीं एक नहीं। गढ़वी लड़का, नहीं मैं जी बता जी। दूं आपको। हाँ हाँ मेरे हाँ। पास एक गढ़वी लड़का आया था। हम्म। उनकी धर्म पत्नी को समस्या थी। जी। तो उनको उस जो भी होगा उनका धर्म गुरु, उन्होंने ये बताया था कि आपको बकरे का बलिदान देना होगा, तब हम्म आपकी समस्या दूर होगी। तो फिर मैंने कहा भाई ऐसी कोई बात होती नहीं है, आपको उनके पास जाना ही नहीं चाहिए। इस हम्म। संदर्भ में मैंने वो कथा शुरू की थी कि कई लोग वहां जाते हैं, उनके धागा बांधते हैं। जैसे महाराज जी हमारे यहाँ एक कोई गांव है छोटा सा, वहां पे कोई हम्म। वो है, वो पानी में थूक के पानी अभिमंत्रित करके देता है। और जी हमारे कई लोग उनका जूठा पानी पीते हैं और कहते हैं कि भाई वो उन पीर से हमें अच्छा हो गया। तो जी। ये बातें हमें खटकती है, तो इसके लिए हमने यह विषय उठाया था। और हम्म। कथा का विषय था, मैंने किसी से मांगा अभी कि भाई कौन सी क्लिप वायरल हुई है मुझे बताइए। तो अभी सुना मैंने। तो हम्म। जो सुखिया नाम की महारानी, प्रभु दर्शन नहीं हो रहा है उनको, हम्म। तो वो सांडिल्य ऋषि के पास जाती है जी और जी उनसे जी। उपाय पूछती है। तो मैं इस विषय में वो बात ली थी कि भाई ऐसा हमारे धर्म गुरु इतने हैं तो उनके पास हमें जाना चाहिए बस। लेकिन वो क्या है ना, वो अ, वास्तविकता अलग है और उसमें आपने जो चर्चा करी वो अलग है। जी क्योंकि जो इमाम शाहजी थे जी। तो उन्होंने मुस्लिमों का विरोध किया हुआ है। और अच्छा। बीच में ये। क्या हुआ, जो मुगल शासन था उस समय जी ये जो पिराना धाम है उसके ऊपर उनका आक्रमण हुआ है अलग अलग तरह से। जी तो महाराज जी, मुझे अभी ज्ञान नहीं है, आपके हाँ, माध्यम से पता चल रहा है अभी हमको। अभी जो वर्तमान स्थिति है, तो अभी धीरे धीरे उसके ऊपर कार्य हो रहा है। और पूरी अपनी जो विश्व हिंदू परिषद है, संघ है, अभी संघ का एक बड़ा शिविर भी वहां पर हुआ जिसमें 12 दिनों तक सर संचालक पिराना निवास में थे। बहुत बड़ी बात है अभी मोहन 2 महीने भागवत जी। पहले। और 1600 राष्ट्रीय जो कार्यकर्ता है, केंद्रीय जी पदाधिकारी, उनका शिविर था पिराना में। जी महाराज जी। सर संचालक जी और संघ कार्यवाह
सब जी के सब महाराज जी। वहाँ 12 दिनों तक उन्होंने भी सारी जानकारी ली। तो जी। अभी वहाँ पर है ना, वहाँ पे उन सैयदों से भी जो अपने अनुयायी है उनकी फाइट चल रही है। ये अच्छा, वहाँ उस सैयद है अभी? हाँ, मतलब कि उनका आना-जाना है ना, वहाँ पे घटना में लिखा हुआ है। और कुछ अच्छा। चीज़ें हैं जो वहाँ, लेकिन ये पूरी की पूरी संस्था जो है आज वहाँ पर 19 तारीख को 17, 18, 19 भगवान जी, विष्णु के दशावतार के मूर्ति की स्थापना की है, और मतलब अभी प्राण प्रतिष्ठा है उनकी। जी, जी, बहुत और बड़ी बात है। उसमें विष्णु याग का आयोजन है, जिसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी आ रहे हरिद्वार से, जी महाराज जी, बहुत रविंदर बड़ी बात पुरी है। जी। अच्छा, मैं खुद निर्मल अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ। बहुत बड़ी बात। महाराज जी, इस बात से तो हमें प्रसन्नता हुई। चलो जो भी हुआ, आपसे वार्तालाप तो हुआ। जी, जी। आप जैसे महापुरुषों तो से ये भी मैं बड़ी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि ये मामला शांत हो जाए। थोड़ा जी, कुछ लोग उग्र भी है, तो अगर आपसे किसी की बात होती है, तो बस जी, आप इतना बताइएगा कि फैजपुर वाले जनार्दन जी से बात हो गई है। हुँ? जी, जी, हाँ, हाँ, हाँ। जी महाराज तो जी, क्या है ना, जी। ये फिर मैटर थोड़ी श्रद्धा की होती है ना? हाँ, नहीं समझता हूँ मैं, किसी को भी आहत हाँ। करना, वो हम भी उग्र हो जाएँगे, हमारे विषय में कोई बोलेगा तो। जी, और जी। जो आप जैसी शालीनता से बात करने वाले लोग तो बहुत कम होते हैं महाराज जी, इस हाँ। विषय में। कोई हुँ, हुँ। गाली-गलौज कर लेता है, कोई वो कर लेता है, वो तो जी, जी, चीज़ें जी। होती ही है फिर, तो जी, जी। एक्शन का रिएक्शन होता ही है, नहीं, मैं समझता हूँ। मैं भी एक पर कथा फिर महाराज जी, जी, आपका मैं नामोल्लेख कर लूँगा कि जी, महाराज जी से हमारा वार्तालाप हो गया है विषय जी, में। जी, जी, जी। हुँ? हुँ, हुँ। तो जी, ये कुछ जी लोग महाराज जी। हैं जो वास्तविकता को नहीं जानते या समझना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोग जी ऐसे महाराज, होते हैं जिनको आप समझा नहीं सकते, या तो जी, वो समझना नहीं चाहते। सही बात है। ऐसे लोग हैं जो पिराना की बदनामी करने में लगे पड़े हैं, और उन जी लोगों को महाराज क्या जी। है, ये आपके शब्द जो है वो उनको हथियार मिल गया बीच में। जी, जी महाराज जी, समझ गया हाँ, मैं। हाँ, हाँ। और हुँ, सतपंथ संप्रदाय जो है हुँ, वो पूरा-पूरा सनातन धर्म को मानता है, उसकी आचार संहिता, इसमें तो प्याज़, लहसुन तक मना है। वाह! हाँ, हुँ। मतलब कि ये गाय काटने की, मेरा तो जन्म सतपंथ में हुआ, मैं ब्रह्मचारी संत हूँ सतपंथ का। जी महाराज जी। हमारी जो परंपरा है फैजपुर की, वो गुरु शिष्य परंपरा है, नाद परंपरा। जी महाराज जी। तो इसमें तो मैंने बचपन से प्याज़ लहसुन नहीं खाया, आचार संहिता ही है शिक्षापत्री। जी, तो जी। ऐसा एक पवित्र संप्रदाय है, विचारधारा पूरी सनातन है। जी। हाँ, तो और ये असलियत है, इसलिए तो ये जो हिंदू संगठन हैं सारे, बजरंग दल से सारे, वो सब के जी, सब वो जुड़ पिराना रहे हैं। के पीछे खड़े हैं, और जी। ये सब हो रहा है मतलब। जी महाराज जी। हाँ, तो ऐसी सारी बातें हैं, तो हुँ। ठीक है, आपने भी अच्छी बात की, और ये आपने भूल से ये सब हुआ है, कहीं आपने सुना होगा, लेकिन आपको इस बहाने चलो वास्तविकता हेलो। पता चली। जी महाराज जी, में कथा रहेगी ना, उन जी, आगामी कथा में मैं इसका जी, विस्तृत का विशेष वर्णन करके आपको उसका वीडियो भी भेज दूँगा। जी, वैसे जो निवास सत्य कहाँ है रहता वो है हमें कहना महाराज है जी? बस। जी, मैं हुँ, मोटा भाड़िया गाँव है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। ठीक है महाराज श्री प्रणाम। हुँ, जी। मांडवी। हेलो? जी महाराज जी, जी, मैं आपका जी। नंबर संपर्क सेव कर लेता हूँ जी, जी, और जी महाराज जी। आपसे हाँ, मिलूँगा अवश्य। जी ज़रूर, महाराज ज़रूर, ज़रूर। जी, 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 जी। जय सिया राम। जय श्री राम। સતપંથ સમાજ સત્ય સનાતન ધર્મનું એક અભિન્ન અંગ જેને કહી શકાય અને જે રાષ્ટ્રીય ફલક ઉપર એ લોકો જે સેવા કરી રહ્યા છે એ સેવાથી હું આજે અભિભૂત થયો અને જે યજ્ઞ પરંપરા અથર્વવેદની જે પરંપરા છે એ અથર્વવેદની પરંપરા પ્રમાણે આ સમાજ જે ચાલી રહ્યો છે એના બધા જ અનુયાયીઓ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા અને એ અનુયાયીઓને મળીને ખૂબ મને આનંદ થયો છે અને મને ખૂબ આ લોકોએ સન્માનિત કર્યો છે. આગામી કથામાં આ વિષય ઉપર હું વિસ્તારપૂર્વક જે આપણું દશાવતાર ચરિત્ર છે એ દશાવતાર ચરિત્રમાં જે વર્ણવ્યું છે એના ઉપર અને સતપથ સમાજ ઉપર જે વિશેષ ચર્ચા છે હું અવશ્ય કરીશ. આજે પૂજ્ય જનાર્દનજી મહારાજનો પણ સંપર્ક થયો. વર્તમાનમાં સમાજમાં જે એક વિડીયો ક્લિપ કથામાં
જે અન્ય ઉદ્દેશીને બોલવામાં આવેલી હતી એને માધ્યમ બનાવીને જે ફરી રહી છે, વાસ્તવિકતા તે નથી. હિન્દુ ધર્મ, સનાતન ધર્મના સમસ્ત અનુયાયીઓ એકત્રિત રહે, સંગઠિત રહે, એ એક ભાવના છે. અને એ વિડીયોનો ખોટો કોઈ દુરુપયોગ કરતા નહીં. જે પણ જે દુરુપયોગ કરતા હોય એ બધાને કરબદ્ધ પ્રાર્થના બ્રાહ્મણ તરીકે, એ વિડીયોનો કોઈ દુરુપયોગ કરતા નહીં. આ સનાતન ધર્મનું એક અભિન્ન અંગ છે અને અભિન્ન અંગની જે મર્યાદાઓ છે એને કોઈ જાણતા ન હોય તો કૃપયા જે આ પુસ્તકો મારી પાસે છે એનો હું પણ અભ્યાસ કરીશ, આપ પણ અભ્યાસ કરો અને સમસ્ત હિન્દુ સમાજ એક થઈને રહે એ ભગવાન પાસે પ્રાર્થના. અને આપણે એક થઈને સમસ્ત ભારત વર્ષને, આપણા દેશને મહાનતા અને વિશ્વગુરુ બનાવવાની જે પ્રક્રિયા છે એમાં આપણે મદદરૂપ બનીએ એવી બધાને પ્રાર્થના.